Hello students, I'm here to talk about CPSAT, that is CPSAT, CLAT Prep Scholarship and Admission Test 2020. We'll be launching this year CPSAT on 14th of the June, and the response has been tremendous. Many of the students have already logged in and many are in the process. Now, let us talk about what is CPSAT and what is the concept behind this exam. This is basically a general aptitude based scholarship and admission test through which you can get entry to CLAT prep courses at some discounts and scholarships. Not only discount is the sole purpose of this test has two major purposes. One is to recognize the talent of the student and award him financially, which we call a scholarship. And number two, it is a very good academic feedback to the student who is aspiring to become a young lawyer. By giving this CPSAT, he can easily measure, benchmark his performance among all the five sections that has been asked in actual CLAT exam, for which he or she will be targeting in a 1 or 2 year down the lane. Fine. So this exam is a benchmarking tool academically as a rewarding method to all those who deserve it. Now let's talk about basic structure of CPSAT. Now CPSAT will be consisting of five sections, five subject areas where we'll be checking the student. Let's talk about general knowledge. First of all, general knowledge is basically your understanding towards some static GK concept जो आप लोग 7th, 8th, 9th, 10th में पढ़ चुके हैं. आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है, सिविक्स पढ़ी है, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, जनरल साइंस पढ़ी है. अगर आपने 8th 9th 10th में ढंग से पढ़ाई करी है तो इट विल बी ए वेरी इजी course for you when it comes to static GK, and there will be some current GK question asked. That will be primarily from the main streamline news जो आप लोग अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल पे सुनते हैं आमतौर पर. तो कुछ उसके ऊपर जनरल क्वेश्चंस आपके होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड. देन नेक्स्ट सेक्शन वुड बी जनरल इंग्लिश. जो बेसिक ग्रामर आप लोगों ने पढ़ी है क्लास 7th 8th 9th 10th में, एनसीईआरटी बुक्स वगैरह आपने पढ़ी हैं. इसके अलावा वोकेबलरी थोड़ी बहुत आपकी डेवलप्ड होगी ऑलरेडी. प्राइमरीली विल बी चेकिंग अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज. आपको पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है और उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको आपको आंसर करना है. तो दिस वेरी बेसिक एंड जनरल मॉडल. दो स्टूडेंट हु आर गुड इन रीडिंग, जिनकी रीडिंग की हैबिट है उनके लिए बहुत आसान होगा. जिनकी रीडिंग हैबिट्स नहीं है, दे हैव टू डेवलप इट, बिकॉज क्लैट इज प्राइमरीली फोकस ऑन रीडिंग हैबिट्स नाउ. तो उसके हिसाब से ये आपका एक बहुत अच्छा बेंचमार्किंग और फीडबैक टूल होगा टुवर्ड्स योर रीडिंग एबिलिटीज ऑल्सो. Then I'll talk about quantitative techniques, quants in general. 7th 8th 9th 10th में जो आप मैथ्स में बेसिक चैप्टर पढ़ते हैं, रेशियोज हो गया, एवरेज हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इनके ऊपर जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. देयर विल बी नो डेरिवेशंस, थ्योरम्स वगैरह इसके ऊपर बेस्ड नहीं आएंगे. बहुत बेसिक लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे जो कंसेप्ट क्लैरिटी अगर आपको है तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं. Then other section would be reasoning. रीजनिंग के अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिक पजल्स, आपकी एनालिटिकल अप्रोच कैसी है क्वेश्चंस को, डेटा को लेके, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस. देन विल आल्सो टॉक अबाउट स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जो कि बहुत जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं. अगर आप थोड़ा सा रैशनल एंड प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस अपनाएंगे तो डेफिनेटली यू विल बी वेरी इजीली क्रैकिंग दोज क्वेश्चंस आल्सो, और वहां आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. And last surprise element that you will be getting would be in the form of legal section. Yes, we'll also be asking legal section, but please do not think it's about law or it's about some legal knowledge that we'll be asking for. It's basic general legal awareness, plus it is more towards reasoning and English comprehension. आपको सारे रूल्स, सारी लीगैलिटी, सारे फैक्ट्स, सारी डेटा वहीं पे क्वेश्चन में गिवन होगा. आपको उसको पढ़ना है और रीजनेबली आपको कॉम्प्रीहेंड करके लॉजिकली क्या जजमेंट आपका हो सकता है वो आपको हमें बताना है इन द टर्म्स ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस. So basically everything would be provided to you to solve how to solve that particular question. All the rules will be given in the paper itself. आपको अलग से कुछ याद करके नहीं आना है लीगल के अंदर. आपको सिर्फ वहां पे रूल्स को ढंग से समझना है जो क्वेश्चन में गिवन है, और डेटा को पढ़ के, फैक्ट्स एंड सिचुएशंस को पढ़ के, एनालाइज करके एक जजमेंट आपको देना है जो आप आंसर में टिक करेंगे. तो इट इज अ वेरी जेनरिक काइंड ऑफ पेपर जिसके तैयारी के लिए आपको, अगर आप फंडामेंटली आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटीज, इंग्लिश एबिलिटीज और कैलकुलेशन हैबिट्स अच्छी हैं तो आपके लिए बहुत आसान पेपर होने वाला है. एंड डेफिनेटली इससे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक मिलेगा, इससे आपको बहुत अच्छा एक बेंचमार्किंग टूल मिलेगा.
आप अपने आप को बेंचमार्क कर पाएंगे अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में कि आपकी रिलेटिव स्टैंडिंग अभी कैसी है, एंड डेफिनेटली विल गेट ए ग्राउंड लेवल जहाँ से हमें ये मालूम चलेगा कि अभी हम कहाँ पे हैं और हमें कितनी मेहनत और करनी है टू क्रैक क्लैट. सो प्लीज have confidence, be motivated, and I'll see you in CPSAT. It will be on 14 June. उससे related detail instructions. Since paper will be online, तो कैसे होगा उसका आपको सब चीज़ें आपको in the meantime बता दी जाएंगी. तब तक best of luck, stay safe. Thank you.